नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 को पेश किया और कोरोना के काल में पेश हुए इस बजट में सरकार ने कई कड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पे 4 रुपए एग्री सेस का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की लिमिट को 49% से 74% किया गया है। बजट में मिडिल क्लास के हाथ खाली हैं। सरकार ने इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है, ना ही कोई छूट दी है। हालांकि किफायती घर खरीदने वालों को ब्याज पर 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा छूट का समय 1 साल से बढ़ाकर के 2 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। और इनकम टैक्स फाइल करने से 75 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को छूट भी दे दी गई है। अब इसके साथ ही सवाल यह है कि क्या कोरोना के बाद ये जो बजट है वो कारगर साबित होगा? क्या सरकार की उदार नीति का फायदा मिलेगा? क्या सौगात देकर किसानों को सरकार मना लेगी? और क्या ये बजट भविष्य के भारत का बजट है? आज इसी पर हम बड़ी बहस करेंगे। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट 2021 और 22 को पेश कर दिया और सीतारमण ने स्वास्थ्य क्षेत्र को 2.24 लाख करोड़ रुपए का एलोकेशन किया। इसके साथ ही सरकार की ओर से कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का फंड दिया गया है और इस बजट में ग्रामीण विकास के लिए 40,000 करोड़ और किसानों के कर्ज के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। बजट में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचा, रक्षा पर अधिक खर्च के माध्यम से आर्थिक सुधार को आगे बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया गया है। अंतरिम बजट समेत मोदी सरकार का यह नवा बजट है और यह बजट ऐसे समय में पेश हुआ है जब देश कोविड-19 के संकट से बाहर निकल रहा है। Today, India has 2 vaccines available and has begun immediately safeguarding not only her own citizens against COVID-19 but also those of 100 or more countries. It is added comfort to know that 2 or more vaccines are also expected soon. Honorable Prime Minister launched the vaccination drive by crediting and thanking our scientists. We are ever grateful for the strength and rigor of their efforts. Having said that, we are all reminded time and again that our fight against COVID-19 continues into 2021. Now, just as it happened after the 2 world wars, there are signs that the political, economic, and strategic relations in the post-COVID world are changing. This moment in history is the dawn of a new era, one in which India is well poised to truly be the land of promise and hope. PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana will be launched with an outlay of about 64,180 crores over 6 years. This will develop capacities of primary, secondary and tertiary care health systems, strengthen existing national institutions and create new institutions to cater to detection and cure of new and emerging diseases. The government announced the Atmanirbhar Bharat package to sustain the recovery further into the year. We also rolled out 2 more Atmanirbhar packages, 2 and 3. Total financial impact of all the Atmanirbhar Bharat packages, including measures taken by the RBI, was estimated to be about 27.1 lakh crores, which amounts to more than 13% of our GDP. We will introduce the aesthetically designed Vista Dome LHB coach on tourist routes to give better travel experience to passengers. The safety measures undertaken in the past few years have borne results. To further strengthen this effort, high-density network and highly utilized network routes of Indian Railways will be provided with an indigenously developed automatic train protection system that eliminates train collision due to human error. I am providing a record sum of 1,10,055 crores for railways, of which 1,07,100 crores is for capital expenditure only. Infrastructure needs long-term debt financing. A professionally managed development financial institution
is necessary to act as a provider, enabler, and catalyst for infrastructure financing. Accordingly, I shall introduce a bill to set up a development financial institution. I have provided a sum of 20,000 crore rupees to capitalize this institution. The ambition is to have a lending portfolio of at least 5 lakh crores for this DFI within 3 years' time. A framework will be put in place to give consumers alternatives to choose from among more than one distribution company. The viability of distribution companies is a serious concern. A revamped, reforms-based, results-linked power distribution sector scheme will be launched with an outlay of 3,05,984 crores over 5 years. Today, India has 2 vaccines affected a country or a region. आपने सुना उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस बजट के अंदर किस किस क्षेत्र में एलोकेशंस किए गए हैं। हालांकि आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में इसको आप देख सकते हैं और इस तरीके से जो उस विषय है उसको ध्यान में रखते हुए आज यहां पर बजट के अंदर जो प्रावधान है वो भी किए गए हैं। लेकिन फोकस इस बार जो हेल्थ सेक्टर है उसमें देखने को मिला है, क्योंकि सबसे ज्यादा बजट का एलोकेशन आपको हेल्थ सेक्टर में ही देखने को मिलेगा। 137% का इजाफा है इसके अंदर। ग्रामीण विकास के लिए 40,000 करोड़ हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो छूट थी उसको 1 साल और बढ़ाया गया है। हालांकि मिडिल क्लास जो कि टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद कर रहा था, उसको टैक्स स्लैब में कोई बदलाव इस बार इस बजट के अंदर नहीं मिला है। लेकिन कोरोना काल के बीच में जिस तरह से अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी है, उसके बाद क्या इस बजट से उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये बात प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री की तरफ से ये बातें कही गई हैं। तो वित्त मंत्री ने आज उम्मीदों के बजट को तो पेश कर दिया है, लेकिन इसकी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हम आपको सुबह से लगातार दिखा रहे हैं और आज अब इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। अशोक कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी। बहुत स्वागत है अशोक कुमार जी इस चर्चा में। मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज मिश्रा जी आपका भी स्वागत है। डॉक्टर भूपेंद्र कौशल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हेड HR मैन्युफैक्चरिंग जाइडस वेलनेस से, आपका भी बहुत स्वागत है भूपेंद्र कौशल जी। कल्पेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। कल्पेश श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले अशोक कुमार जी आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को तो हम लोगों ने सुना, लेकिन एक बड़ा सवाल यह था कि कोरोना काल के बाद क्या जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से पटरी पर आएंगी। मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ वर्ग ऐसा है जो निराश है, कुछ कह रहा है कि हां बजट ठीक है, उनके काम का है। कैसे देखते हैं आज के इस बजट को? आपकी पहली प्रतिक्रिया अशोक कुमार जी। नए भारत के, आयुष जी धन्यवाद। नए भारत का नया बजट जो न्यू इंडिया के आगामी लक्ष्यों को आत्मनिर्भर बनाने को पूर्ण करने के लिए एक नई ऊर्जा, नव अवलोकन प्रकाश को लेकर के आज 130 करोड़ भारतीयों को संचारित करने के लिए यह बजट आया है। इस बजट में सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्व समाहित बजट है ये, जिसमें सबको साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस पर कायम लेते हुए जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की धारणा थी, जिस धारणा के तहत अंतिम पंक्ति तक पहुंचे, उसका जो भी सरकार का जो साजो सामान है, जो सरकार की व्यवस्था है, वो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचे, उसको पहुंचाने का पूरा प्रयास किया गया है। आज कोरोना काल में जिस प्रकार से पूरे विश्व में एक अर्थ का संकट बना हुआ था, उस संकट के बीच में भी अगर एक तरफ मंदिर का निर्माण हो रहा था तो एक तरफ 2-2 प्रकार की वैक्सीन भारत में तो सबसे सस्ती और सर्वसुलभ वैक्सीन हमने तैयार किया। तो हमारा विज्ञान और हमारा शास्त्र और हमारा संकल्प और हमारी संस्कृति एक साथ पल्लवित हो रही है। इसी प्रकार का यह बजट भी देखने को मिल रहा है। मैं ऐसे बजट के लिए अपने प्रधानमंत्री और अपने होनहार शास्त्री मंत्री अशोक कुमार जी, ये तो देखिए, चलिए ये बात तो हो गई, क्योंकि ये बात हम लोगों ने प्रधानमंत्री से भी सुनी, वित्त मंत्री से भी सुनी। लेकिन चूंकि आप प्रवक्ता हैं तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि आप थोड़ी मोटी मोटी बातें जो हैं, क्योंकि लेमैन लैंग्वेज में थोड़ा मुझे समझा दें, लोग भी समझना चाहते हैं। बेरोजगार के लिए क्या है, युवाओं के लिए क्या है, किसान जो इस समय सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बना हुआ है इस वक्त, उसके लिए इसके अंदर क्या है, अर्थव्यवस्था पटरी पर कैसे आएगी, आय दोगुनी कैसे होगी, ये थोड़ा समझा दें। मैं ये समझना चाह रहा हूं इस बजट से कैसे होगा। देखिए, हमने 13.5%
जो टोटल जीडीपी का है, हमने वो पैसा इनको दे करके उसमें जो हमने सबका साथ सबका विकास में ये पैसा दिया गया है कि आत्मनिर्भरता की तरफ हम बढ़े। रक्षा का बजट भी हमने दिया है कि चाइना का संकट है तो हम आत्मरक्षा, जो हमारे रक्षा उत्पादन है वह भी भारत में हो, और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार योजना के तहत सबसे ज्यादा पैसा दिया है। एमएसएमई सेक्टर में एक क्रांति लाने की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। जो अर्थव्यवस्था 45 डिग्री पर आपको जाती हुई दिखेगी, एक इस प्रकार की व्यवस्था इसमें की गई है। हम लोगों को पैसा दे दें कि आप पैसा लीजिए अपने घर में रखिए, उस व्यवस्था से अलग आत्मनिर्भर बनाने की बात है, वो विकलांग बनाने की बात है। हम बार बार प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, विकलांग भारत की बात नहीं कर रहे हैं कि आप घर बैठिए आपको रुपया पहुंच जाएगा, आप जाइए आपको पैसा दे दिया जाएगा। यह तो आज तक होता ही रहा है। अब हम उसी ऊर्जा, ठीक है, चलिए अशोक जी, अभी मैं आऊंगा दोबारा से, तब थोड़ा और विस्तार पूर्वक आप समझाइएगा। कपिल श्रीवास्तव जी देखिए बैठे हुए हैं, थोड़ा मुस्कुरा भी रहे थे। कपिल श्रीवास्तव जी, मुझे बताइएगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टियां अमूमन यही कहती हैं, कोई भी विपक्षी पार्टी ये नहीं कहती कि हाँ बजट बड़ा धमाकेदार था, बड़ा मजा आ गया। उससे इतर ये मुझे बताइए कि क्यों लग रहा था कि भाई ये चुनावी बजट है? अगर चुनावी बजट था तो भाई उत्तर प्रदेश के लिए भी तो कुछ ऐसी स्पेशल व्यवस्था होनी चाहिए थी ना। देखिए आयुष भाई, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपने जो कुछ भी समझने की कोशिश अशोक कुमार जी से की, उन्होंने उसको लब्बो लबाब में लपेट दिया, लेकिन बताया एक पर। आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और बीमा क्षेत्र में 35% से बढ़ा करके 70% से ऊपर ये जो है एफडीआई कर देते हैं। ये है इनका आत्मनिर्भर भारत। दूसरा आत्मनिर्भर भारत आपको दिखा दे, ये बताते नहीं है कि हम राजस्व घाटा कैसे पूरा करेंगे, ये बताते नहीं कि हमारी कौन सी कमाई हुई, ये बताते नहीं कि 6 साल में जो हमने वर्ल्ड बैंक से 51% जो हमने कर्जा उठाया, यानी कि 49 लाख करोड़ रुपए जो हमारे ऊपर 65 साल की सरकारों ने लिया, जिसमें कि अटल बिहारी जी की भी सरकार थी, और इन्होंने मात्र 6-7 वर्षों में उसको बढ़ा करके 91 लाख करोड़ रुपए जो ये इन्होंने डेफिसिट किया, ये उसके बारे में नहीं बता रहे हैं। ये उसके बारे में नहीं बता रहे हैं कि ऑल इज वेल और फील गुड का नारा लगाने वाले ये लोग, आत्म भारत की बात करने वाले लोग, जुमला परोसने वाले लोग ये नहीं बताते हैं कि अगर आपका कोरोना काल का पहले का बजट जो है वो कोरोना काल से पहले देश की जीडीपी 3.50% पर ले आ दिया, जबकि आपको 2014 में जो है 9.5% की आपको जीडीपी प्राप्त हुई थी। जो बेरोजगारी दर 2014 में 2.47% थी, वो वर्तमान समय में से कोरोना से पहले की मैं बता रहा हूं 9% थी, अब तो 40% है। तो हमारे भाई ये नहीं बता पा रहे हैं कि जब आपने महामारी का काल नहीं था तब तो आपने देश की जीडीपी डुबा दी, राजस्व घाटा बढ़ा दिया, बेरोजगारी बढ़ा दी, तो कौन सा बजट आप इसमें लेकर के आए हैं? एक भी यूथ पे नहीं। आत्मनिर्भर भारत पे मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से इन्होंने किया। महंगाई को बढ़ाने वाला बजट लेके आए हैं। ये कहते हैं कि डीजल पे हम 4 रुपए और पेट्रोल पे 2.5 रुपए बढ़ा देंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर ये इस पे कृषि सेस लगा रहे हैं तो क्या जो सम्मान निधि दे रहे हैं उसी का पैसा भरपाई कर रहे हैं? क्योंकि सम्मान निधि में तो 1 पैसा भी इन्होंने बढ़ाया नहीं, और ये कह रहे हैं कि हम 2022 में दुगनी कर देंगे। वर्तमान में आय बताने के लिए तैयार नहीं है कि प्रति किसान आय क्या है जिसको ये दुगना कर देंगे। ये C2 लेवल को लागू करने के लिए तैयार नहीं, ये MSP पे कानून लाने को तैयार नहीं। केवल 14% की खरीद जो है वो सरकार वर्तमान समय में फूड बिल के वजह से कर रही है। अगर फूड बिल नहीं होता तो ये 6 से 7% की केवल खरीदारी हो रही थी MSP पे। ये MSP पे कानून क्यों नहीं लाना चाहते अगर आपको किसान की आय दुगनी करनी है? चलिए कवि जी, आपके बहुत सवाल हैं, मुझे लगता है कि अशोक जी शायद उसको इतने नोट भी नहीं कर पाएंगे, एक एक करके मैं उनसे जवाब लूंगा। मनोज जी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज जी, सत्ता पक्ष हमेशा की तरह बजट की खूबियां बता रहा है और विपक्ष कह रहा है कि भाई उम्मीदें जो थी वो नाकाम हो गई हैं, कुछ नहीं मिला है, निराशा वाला बजट है। लेकिन इन सब के बीच में एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते कोरोना काल के बीच और उसके बाद आया ये बजट कैसे देख रहे हैं? बजट से इंतजार होता है और बजट के दौरान पूरे देश में हर वर्ग की निगाह रहती है कि आखिर उसके लिए क्या है। बिंदुवार चर्चा करनी है। बता दें आपको, दरअसल जो कमजोर वर्ग के लोग थे, या ये कहिए कि क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ, उन बिंदुओं पर अगर बात करें तो जैसे ही आप डीजल और पेट्रोल के बढ़ाने की बात करते हैं, ऑटोमेटिक सारी चीजों का रेट अपने आप बढ़ जाएगा। इसमें कोई भी फर्क वाली बात नहीं है।
घरेलू सामान से आपके किचन से लेकर के आपके दफ्तर तक की सारी चीजें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। दूसरी बात, टैक्स पेयर इंतजार ये करता है कि साहब क्या स्लैब है, स्लैब में कोई बहुत बड़ा बदलाव, लेकिन एक बात और देखनी पड़ेगी, कोरोना के पहले या कोरोना के बीच में गिरती हुई जीडीपी को इसी बहाने सरकार को ठीक करने की बहुत बड़ी चिंता थी। नई योजनाओं को लेकर के ये कुछ इसलिए नहीं आ सकते थे क्योंकि बजट नहीं, बजट मतलब इंसान लिक्विडिटी या पैसे की बात कर ले तो नहीं है। वसूली जीएसटी आप देख रहे हो कि लगातार उसका भी गिराव होता चला गया। बिल 1, 2, 3 मतलब टैक्स पेयर को कोई खास लाभ नहीं, आम आदमी को अभी भले नहीं दिख रहा होगा, जो टकटकी लगाए बैठे इंतजार कर रहे थे, उनकी स्थिति आने वाले महीने, 2 महीने, 3 महीने में जैसे ही रेट बढ़ेगा डीजल पेट्रोल का, ऑटोमेटिक सारी चीजें बढ़ जाएंगी। दूसरा, सैलरी पेड लोग, पेंशनर जो रिटायर लोग हैं और व्यवसायिक जो लोग टैक्स पेमेंट करते हैं। आयुष जी, मैं कहना चाहूंगा कि सरकार ने विगत 10-12 महीने में कोरोना की महामारी के दौरान जो सारी चीजें बंद हो गई थी, उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये नॉर्मल स्थितियां नहीं थी, नॉर्मल स्थिति में बहुत सारी चीजों में बदलाव आता है, गिरावट आती है, तो सरकार ने उसको बैलेंस बैठाते हुए बहुत कुछ लोग लुभावना बजट लोगों को नहीं दिया है। ये बात हमको आपको माननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। दूसरी, जो गिरती अर्थव्यवस्था थी उसको सुधारने का भी प्रयास इस कोरोना काल के दौरान या इस बजट के जरिए किया गया है। लेकिन क्योंकि विपक्ष कभी भी जो भी होता है वो बजट की सराहना इसलिए नहीं करता कि करना भी नहीं चाहिए, उसमें खामियां उनको दिखनी चाहिए, लेकिन सरकार के प्रवक्ता, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करता हूँ, वित्त मंत्री के अलावा बाकी लोगों की बात करता हूँ, इन लोगों के पास भी बिंदुवार चर्चा, आत्मनिर्भर भारत की बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल करिए, एमएसएमई के जरिए रोजगार की बात आप कर रहे हैं, करिए, लेकिन जो सरकारी नौकरियां बेरोजगारों का वादा है, बहुत सारी चीजें हैं जो इस बजट में छूट गई हैं। आयुष, ठीक है मनोज जी, मैं उस पर भी आऊंगा कि क्या छूट गई है, उस पर भी हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपके जो सवाल है उसका जवाब अशोक जी से मैं लूंगा। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर भूपेंद्र कौशल जी मौजूद हैं, इनसे भी मैं जरा समझता हूं। डॉक्टर भूपेंद्र कौशल जी, ओवरऑल बजट आप इसको कैसे देखते हैं और क्या वाकई में माना जाए उम्मीदों पर खरा उतरा है या फिर निराशा हाथ लगी है? मैं ऐसा बोलूँगा कि ये मिक्स बजट है, जिसमें कि कुछ तो पॉइंट ऐसे हैं जो कि सालों साल वही आते हैं, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर्स को हम हमेशा बात करते हैं कि एयर इंडिया को डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे, या दूसरे जो डिफंक्ट PSUs है उनको हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। बट ये तो पुराने पॉइंट्स हैं, बट द टाइम हैज़ कम कि इसको अपने को कैसे टाइम लिमिट में किया जाए, ताकि जो PSUs का जो पैसा है, जो डिफंक्ट है, उसको कैसे अपने मॉनेटरी सिस्टम में डिफ्यूज किया जाए। तो ये सारे पॉइंट तो पुराने हैं, बट कुछ पॉइंट डेफिनेटली, कुछ जो सजेशन है बहुत ही अच्छे हैं। जैसे जिग वर्कर्स के लिए एक डेटा कलेक्शन है जो कि होना चाहिए, जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और सिमिलरली प्रोविडेंट फंड में भी लोग नॉर्मली क्या तो PF को ऐसे देखते हैं कि लोग वॉलंटरी PF डाल देते हैं, तो जिन लोगों का PF एक्सेसिव है तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा, तो ये भी अच्छा है। प्लस PF में कुछ लोग क्या करते थे, बहुत एम्प्लॉयर साइड से एंड एम्प्लॉई साइड से दोनों तरफ से डिले हो जाता था, जो कि इस बजट में स्ट्रिक्ट करने के लिए बोला गया है। तो देखा जाए तो कुछ पुराने पॉइंट्स है, जो कि पुराने मुद्दे हैं, जो कि सालों साल चलते रहे, उनको अपने को टाइम लिमिट करना चाहिए, और कुछ नए पॉइंट्स हैं उनका डेफिनेटली स्वागत करना चाहिए। और ये सब जो मेरा सजेशन है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी से कहीं रिलेटेड नहीं है। मुझे लगता है कि HR के एंगल से ये दोनों चीज़ें स्वागत लायक है। लेकिन भूपेंद्र कौशल जी, मुझे बताइए, ठीक है पॉलिटिक्स तो हर चीज पर होती ही है, हम पॉलिटिकल चर्चा भी करते रहेंगे, फोकस क्या रहा है इस बजट में, आपको क्या नजर आया, और क्या कोरोना काल से उभरती हुई हम लोग जो इस समय व्यवस्थाएं देख रहे हैं उसमें इससे और बेहतर कुछ हो सकता था? मैं चाहूंगा थोड़ा इस चीज को बताएं। वेरी गुड। आई थिंक इसमें जो है, हम जो कोरोना के कारण जो आर्थिक व्यवस्था हमारी मंदी हो गई थी, उसको रिकवरी करने के लिए काफ़ी इसमें इनिशिएटिव लिए गए, और मैं समझता हूँ कि इसको इम्प्लीमेंटेशन जैसे ही होएगा तो इसमें हमारी रिकवरी जो है ग्रोथ पाथ पे आ जाएगी, जो बहुत अच्छा मतलब साइन है। फोकस क्या है, किस चीज पर फोकस इसमें हमने एग्रीकल्चर पे फोकस है, और अपना जितने ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जब बात करते हैं तो हम जो वर्कमैन है उसके बेनिफिट के लिए, जो रिटायर्ड है लोग 75 एंड अबव है, उनके लिए डेफिनेटली
अब इनकम टैक्स की रिटर्न्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ह्यूमन रिलेशन के एंगल से भी बहुत अच्छा बजट है। अशोक जी जवाब दीजिएगा कपीश जी की बात का। बहुत सवाल उन्होंने पूछे और विपक्ष होने के नाते उनका हक है सवाल पूछने का। बताइए उनको क्या है बजट में। एग्रीकल्चर के बजट को उन्होंने ठीक से देखा नहीं। कि बहुत पढ़े लिखे और एडवोकेट भी है, वकील भी है, अधिवक्ता भी है, लेकिन कभी निकाल रहे हैं। लेकिन उस बजट में ये देखें प्रधानमंत्री ये कमी निकाल रहे हैं, लेकिन उस बजट में ये देखें कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसके विकास को मजबूत करने के लिए नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट NAM के अंतर्गत 1000 मंडियों को, अतिरिक्त मंडियों का निर्माण का बात रखी है। और माइक्रो इरिगेशन फंड में 5000 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन भी किया गया है। अगर हम एग्रीकल्चर की इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर की इनकम तभी बढ़ पाएगी जब हम एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री के साथ जोड़ेंगे और जब मंडियों से उसको जोड़ेंगे। आज आलू जो है, अगर भी देखिए जिस हिसाब से 6 रुपए किलो का आलू 30 रुपए किलो बाजार में जा रहा है, तो बीज का पैसा जो आ रहा था वो बिचौलियों के पास जा रहा था। अब आज लोगों को 6 रुपए किलो आलू मिल रहा है। आज की तारीख में आलू आदमी को 10 रुपए किलो, 9 रुपए किलो आलू बाजार में उपलब्ध है। तो जो व्यवस्था की गई है इसमें मंडियों से आर्थिक लाभ निकलेगा। दूसरा, जो ग्रोथ इंजन कहा जाता है, अगर हम अर्थशास्त्र के ग्रोथ इंजन की बात करें तो वो MSME सेक्टर है। और MSME क्षेत्र में 15,700 करोड़ रुपए की अतिरिक्त घोषणा जो की गई है, ये आत्मनिर्भर भारत के लिए, युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए बहुत महत्वाकांक्षी है। तीसरा विषय, जो किसान की बातें कर रहे थे उसमें 15,000 करोड़ को बढ़ा के 15,000 करोड़ को बढ़ा के 16,500 करोड़ रुपए किया गया है। ये 16,500 करोड़ रुपए वार्षिक जो किसानों के सम्मान निधि में जाएगा, वो पैसा भी किसान को ही मिलने वाला है। लेकिन जो किसान किसानी खेती करेंगे उन्हीं को लाभ मिलेगा। जो 4 किसानों को जोड़ करके, चाहे वो यूनिट बना के, सोसाइटी बना के भी उसका काम कर सकते हैं। तो इसलिए जो ग्रोथ फंड है, चाहे वो MSME सेक्टर हो और चाहे वो मंडियों को, जो 15,000 मंडियों को जोड़ा जा रहा है वो सेक्टर हो, किसान का, एग्रीकल्चर का और उद्योग का जो समावेश होने जा रहा है, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उछाल देगा। जहां तक डीजल और पेट्रोल की बात हो रही है, आप है ऐसा ही लोग GST के खिलाफ लोग कर रहे हैं। लेकिन आज GST में जो पैसा आया है कोरोना काल के बावजूद भी, वो भी अपने आप में बड़ा वॉल्यूम है। इनकम टैक्स में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, लेकिन इनकम टैक्स में हमने कंट्रोल बढ़ाया है, उसका दायरा बढ़ाया है। जो इनकम टैक्स के बाहर लोग बच जाते थे, जो देश से निकल जाते थे, उनको भी हमने अपने साथ लेने की पूरी चेष्टा किया। तो इससे जो इनकम टैक्स का एक बड़ा दायरा बढ़ेगा, उससे भी। चलिए, अब कपीश जी कुछ कहना भी चाह रहे थे। मनोज जी मैं आऊंगा एक बार। कपीश जी ठीक है, अशोक जी को मैंने इसीलिए पूरा समय दिया कि भाई वही समझा दे। समझाने का आज दौर उनका है ना, उनको ही समझाना पड़ेगा। ठीक है कपीश जी। देखिए आयुष भाई, इन्होंने एकदम हमारी बात का जवाब नहीं दिया। मैं तो सीधी बात ये पूछा था कि जो कोरोना काल के पहले का बजट था, उसने हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ा दी, उसने हमारे देश में महंगाई बढ़ा दी और राजस्व घाटा बढ़ा दिया। उसको आप कैसे पूरा करेंगे कि हम ये मान लें कि ये बजट आपका बहुत अच्छा। अभी हाल में एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर 3.50 करोड़ लोग बेरोजगार होकर के लौट आए हैं। आपने उनको तुरंत रोजगार देने की क्या व्यवस्था की इस बजट के अंदर? क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि आप 5 साल का अपना एक प्रोजेक्ट बड़ा खड़ा करके दिखा रहे हो। भूख हमें आज की लगी, हम 5 साल बिना खाए जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो उन बेरोजगारों के लिए आपने क्या इस बजट में दिया, ये बताने के लिए तैयार नहीं है। और ये भी बताने के लिए तैयार नहीं कि जब आप पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाओगे तो हर चीज का दाम बढ़ जाएगा, सारी चीजें महंगी हो जाएगी। आप ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि आपने मोबाइल पार्ट्स और मोबाइल के दामों को अगर आप बढ़ाया है तो वो किसके ऊपर बोझ बढ़ेगा। आपने बिजली के सामानों पे पहले से ही कोरोना काल में 22% उसके दाम बढ़ा दिए थे, आप फिर उसमें बढ़ा करके लेकर के आ रहे हैं। कोई कैसे व्यापारी बचेगा? तीसरी चीज मैं पूछ रहा हूं कि आपने कारपोरेट टैक्स जो है वो कोरोना काल के अंदर कम किया था और 20% कम किया था। अब जो है अब आप इस बजट में भी कारपोरेट टैक्स कम कर रहे हैं। तो हमें एक बात बताइए कि आप MSME को तो मजबूत कर नहीं रहे हैं, क्योंकि जो भारी उद्योग हैं वही 12-14% जो हमारे भारी उद्योग हैं, उन्हीं उद्योगों को लगाने के लिए कारपोरेट टैक्स में आप छूट कर रहे हैं। और आप किसको ये लाभ दे रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूं, इस कोरोना काल में अंबानी साहब जो हैं, अडानी साहब जो हैं, उनकी बहुत कमाई बढ़ी। उनके जैसे बहुत से उद्योगपति और जो आपके पॉकेट के हैं उनकी कमाई बढ़ी है।
क्योंकि 40,000 करोड़ रुपए जो है वो इन्होंने 3 महीने में कोरोना काल के अंदर कमाए थे अंबानी साहब ने, और विश्व के कोरोना काल में चौथे पायदान पे पहुंच गए थे, 12वें पायदान पर थे। तो हम ये कह रहे हैं अमीरों के ऊपर आपने टैक्सेशन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अगर आप अमीरों के ऊपर जो 35% अभी ये हालिया रिपोर्ट है, शायद वो वाकिफ ना हो, वो 35% लोगों पे अगर आपने टैक्स बढ़ाया होता, कारपोरेट टैक्स को हटा करके आपने एमएसएमई को डायरेक्ट मदद दी होती, आपने अगर महंगाई कम की होती, मिडिल क्लास के ऊपर देखा होता, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट मिडिल क्लास पैदा करता है, किसान पैदा करता है। अमीर लोग जो है वो मार्केट में मांग पैदा नहीं करते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि आप जब उनके कोई स्लैब में परिवर्तन नहीं किए, आप उनको अतिरिक्त पैसा देने के लिए तैयार नहीं, आप उनको पुरानी पेंशन देने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, मुझे लग रहा है अशोक जी आपको जवाब देना है। कपिल जी, ठीक है कपिल जी, मुझे लग रहा है आपके सवालों की बौछार भी बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, थोड़ा एक एक करके हम लोग रहते हैं, नहीं तो फिर उलझ जाएंगे अशोक जी के पास, वो सवाल आपके समझ में नहीं आएंगे ना वो जवाब दे पाएंगे। ठीक है, मैं आ रहा हूं आप सभी के पास, लेकिन इस बीच ठीक है इस बीच हमारे साथ प्रदीप गोयल जी भी जुड़ रहे हैं, सीए हैं, थोड़ा इनसे समझते हैं। प्रदीप गोयल जी आपका स्वागत है चर्चा में। प्रदीप गोयल जी, बहुत जरा लेमैन लैंग्वेज में समझाते चलें, क्योंकि चर्चा यहाँ पॉलिटिकल भी हो रही है, लोग अपने अपने एंगल से इस चीज को बता रहे हैं, लेकिन आप एक सीए हैं, मुझे बताएं लेमैन लैंग्वेज में ये बजट ओवरऑल आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, बजट बहुत ही स्ट्रीमलाइन हो रहा है और सिस्टम में आ रहा है कि जैसे हम लोग पहले से कहते थे टैक्स रिफॉर्म्स को बार बार ना चेंज किया जाए, डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस ना किए जाएं बार बार। तो उसी हिसाब से इस बार गवर्नमेंट ने बिल्कुल सिस्टम को जो पहले फॉलो किया था उसी को कंटिन्यू किया है और उसे इम्प्रूव किया है। ना ही कोई रेट्स में चेंजेस किए हैं, ना ही किसी तरह की कोई छेड़छाड़ की है एक्ट्स में, ना कोई रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चेंजेस हुए हैं। ये बहुत ही कमेंडेबल बात है। और छोटी जो कि हिंदुस्तान के सीनियर सिटीजन से 75 साल से ऊपर के पेंशनर्स, उनके ऊपर टैक्स की बिल्कुल लायबिलिटी ख़त्म कर दी है, उनको कोई टैक्स नहीं देना है, उनका कोई रिटर्न भी नहीं सबमिट होना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, और गवर्नमेंट ने इस तरफ जो ध्यान दिया है अपने डेवलपमेंट पे दिया है और चीज़ों को जो फोकस किया है वो उन्होंने कंट्री को कैसे रन करना है और किन चीज़ों पे ज़्यादा थ्रस्ट देना है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया है। आई थिंक इट इज़ गुड। नहीं, लेकिन प्रदीप जी, कोरोना काल के बीच में अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ है, क्या ये जो बजट पेश किया गया है ये बूस्टर का काम करेगा? इसलिए भी हम देख पा रहे हैं कि कोई लोक लुभावन जैसी चीज नजर नहीं आ रही, जिससे आम आदमी अपने आप को बहुत डायरेक्टली कनेक्ट करे, इसलिए भी उसको ऐसा लग रहा है कि उसके हाथ अभी कुछ नहीं आया। थोड़ा सा और समझाएं इस बजट के बारे में, फोकस क्या रहा है इस बजट के अंदर? देखिए, ये पहले राजनीतिज्ञों की एक पॉलिसी हुआ करती थी कि हर करदाता को कभी 2,000 रुपए का, कभी 3,000 रुपए का हर टैक्स में रिबेट दे देते थे और उससे लोग खुश हो जाया करते थे। लेकिन ये जो इन्होंने पॉलिसी पिछले साल ही टैक्स की रेट की 5%, 10% और 15% और 20 और 25%, 2.5 लाख रुपए के ऊपर रेट के टैक्सेस को रिफॉर्म लाए हैं, जिसका बेनिफिट इस साल मिलेगा और ये आगे लोगों को फायदा होगा और लोग अपनी कैपिटल को ज़्यादा जनरेट कर पाएंगे और टैक्सेबिलिटी उनकी ऑटोमेटिकली बहुत कम होने वाली है। तो अब उसको बार बार चेंज करने का बेनिफिट लोगों को जब सामने आएगा तभी समझ में आएगा कि टैक्स रेट ऑलरेडी पिछले साल में काफी कम किए जा चुके हैं, जो मेरा मानना है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। और कोरोना काल में जो लॉसेज आए हैं उसके लिए तो जो वैक्सीन ले आए हैं, ये वैक्सीन पे इतना बड़ा 35,000 करोड़ का खर्चा इस गवर्नमेंट ने किया है और जो डिजास्टर रिलीफ के लिए एक सिस्टम बनाया है कि 500 करोड़ की जगह 30,000 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट ने अपने पास एक फंड क्रिएट किया है। तो कोरोना और इससे जैसी चीज़ों के अंदर रिलीफ आएगा कि देश को ऐसी बीमारियों से और इस समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी। और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने जो मेरी समझ में आ रहा है कि रिफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उस पर भी मैं जाऊंगा। मैं चाहूंगा थोड़ा सा और डिटेल पर मैं आप पर चर्चा करूं, लेकिन अशोक जी कुछ इस बीच कहना चाह रहे हैं। अशोक जी जल्दी से कंप्लीट करें। आयुष जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस बीच में एक स्वास्थ्य योजना जो प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना है, उसके ऊपर हम कंसंट्रेट फोकस नहीं कर पा रहे। इस देश में गरीब से लेकर अमीर तक सबके लिए स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसको फोकस करते हुए प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत में सौगात देने का काम किया है स्वास्थ्य योजना के तहत। जिस समय यह बजट लागू हो रहा था तभी हम जान रहे थे कि तमाम नए अर्थशास्त्री अभी यहां पैदा हो जाएंगे और वह अपने अपने हिसाब से बजट को देखेंगे।
इस बजट में टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए कोई बजट नहीं दिया गया है। इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है खालिस्तान के लिए। इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है जातियों में बांटने वालों के लिए। इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है अपनी अपनी डफली अपना अपना राज बजाने वालों के लिए। हो सकता है ये बड़ा गजब था। इस बजट में भी देखिए आप टुकड़े टुकड़े गैंग और अलगाववादी खालिस्तानी पाकिस्तानी ले आए। ये गजब टैलेंट था अशोक कुमार जी। चलिए ठीक है, मनोज मिश्रा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। मनोज मिश्रा जी वॉल्यूम बढ़ाया है। ठीक है अशोक जी, ठीक है। अभी बहुत सवाल थे कपिल जी के, वो फिर दोहरा देंगे। मनोज मिश्रा जी। मैंने गोयल साहब को और अशोक जी दोनों लोगों को सुना है। दरअसल मैं समझना चाहूंगा कि बात बजट की और बजट देश का है। कोरोना आपदा के नाम पर या उसके बाद जिन जिन विधाओं में आपको फंड अलॉट करते हैं वो एक अलग मैटर हमेशा करते रहे हैं। और अगर आपने इंक्रीमेंट किया है तो जिस तरीके से महंगाई या बाकी चीजें बढ़ती है वो एक रेशियो है। मुद्दे की बात आयुष जी है जिसको समझने की बहुत जरूरत है। वो ये है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कल बजट शुरू होने से पहले एक बात कही थी कि इस वर्ष तो हमने बजट कई बार टुकड़ियों में पहले किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आज के बजट पे चर्चा होनी थी, बजट पेश हुआ। आयुष मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, दरअसल आम आदमी से लेकर कारपोरेट से लेकर के नौकरी पेशे से लेकर के हम आप मीडिया इंडस्ट्री से लेकर के बाकी सारी चीजों, मैंने कहा बजट पे अमाउंट की बात करने के बजाय अगर हम ये बात करें कि इसका असर क्या पड़ेगा, तो असर सीधी सी बात यह है कि कोरोना काल में सरकार ने जिस तरीके से लोगों पे पैसे खर्च किए या लोगों को दिए हैं उसके वसूली का ठीक ठाक रास्ता उसने बनाया हुआ है। नंबर 2, इसका सीधा असर आम आदमी पे क्यों पड़ेगा? क्योंकि जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो चीजें महंगी होंगी। सस्ते क्या, आप देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो गई, और जो छोटे छोटे उद्योग लगते हैं ना उनका बिजली के बिल से भी फर्क पड़ता है, उनके ट्रांसपोर्टेशन से भी फर्क पड़ता है। और आयुष जी 2, 4, 5, 7% लोगों की चर्चा तो कोई बात करने के मास लेबर ही था जिससे हम कोरोना काल से उभरे हैं। अब बहुत स्थिति हमारी खराब नहीं हुई, लेकिन ये बजट मैं फिर कहना चाहूंगा इस बजट में कुछ चीजें ऐसी थी जिसे करना चाहिए था। ठीक है, गिरती जीडीपी को भी सुधारना सरकार का नैतिक दायित्व था, लेकिन थोड़ा कुछ और प्रयास करते तो ज्यादा बेहतर हो सकता था। व्यवस्था ठीक है, सीएस साहब के लिए ठीक हो सकती है, बड़े टैक्स पेयर के लिए ठीक हो सकती है, लेकिन आम आदमी बजट है, आम आदमी की सरकार है। हमको आपको सोचना चाहिए था कि जो चीजें मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सूती कपड़े से लेकर ऑटो पार्ट से लेकर के मोबाइल से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक से लेकर के सारी चीजें, अगर इनका रेट बढ़ेगा तो किसके ऊपर आएगा? कपिल जी क्या कहना चाह रहे हैं? जी मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए यहाँ हमारे समझ से 2 लोग ऐसे बैठे हैं जिनको कि अर्थशास्त्र का हमें बेहतर ज्ञान लग रहा है। एक हमारे सीए साहब हैं, दूसरे डॉक्टर भूपेंद्र कौशल साहब। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि कोई भी इकोनॉमी जो है वो बेस करती है मांग और पूर्ति पर, क्योंकि पूरी इकोनॉमी की जो सर्किल होती है वो मांग से उठती है और पूर्ति पर निर्भर करती है। और यही सर्किल जब चलता रहता है तो देश की इकोनॉमी बूस्टअप हो जाती है और देश की जीडीपी अच्छी निकल जाती है। मैं अशोक भाई से एकदम नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने तरक्की की बात ही नहीं की, उन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग पे चले गए, इसलिए मैं अब उनसे उम्मीद नहीं करता। मैं अपने ये 2 मित्र जो बैठे हैं ये सीजन्ड लोग हैं, ये बताएंगे अर्थशास्त्र का। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूं कि वर्तमान समय में भयावह स्थिति जो बेरोजगारी की पैदा हुई है वो है करीब 40% की बेरोजगारी दर। और मैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की आपको बेरोजगारी जो अभी निकल करके आंकड़े सामने आए हैं 3.5 करोड़ मैंने गिनाए हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तो बात ही मत कीजिए। और जिस जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना थी जिसमें योगी सरकार 25 लाख 30 लाख 40 लाख लोगों को रोजगार दे रही थी, कंप्यूटर रोजगार जो इंजीनियर भी आते थे उत्तर प्रदेश में उसी में जगह पा रहे थे, तो उसमें भी 42% बजट घटा दिया गया है। और सीधा सीधा आप सोचिए कि जो रोजगार की गारंटी थी कि कम से कम जो है 165 दिन का रोजगार मिलेगा, उसको भी छीन लेने का काम मोदी सरकार ने किया है इस बजट के अंदर, कि इसको हम कैसे माने। और तीसरी चीज मुद्रास्फीति दाल में नमक की तरह होती है तो देश को बूस्टअप करती है, लेकिन अगर मंदी का दौर चल रहा हो तो मुद्रास्फीति 0 पे चली जाती है, 1 पे चली जाती है, 2 पे चली जाती है। ऐसी कंडीशन में जहां की महंगाई अगर ज्यादा हो और फिर भी लोग एम्प्लॉयमेंट में हो, तो अगर चीनी का दाम 40 रुपए हो गया तो वो 1 किलो चीनी की जगह आधा किलो चीनी खा लेंगे। लेकिन जब इन्फ्लेशन घट करके 0 हो जाए,
1 पे आ जाए तो आप सोचिए कि वो बेरोजगार हो गया आदमी अगर 20 रुपए किलो भी चीनी कर दी जाए तो वो खरीद के नहीं खा सकता है। आज देश के अंदर इस चीज का सबसे बड़ा खतरा है। ये दोनों लोग इस पर प्रकाश डालें। चलिए। मुद्रास्फीति कैसे उठेगी? ठीक है और कपिल जी, कैसे आपने जो बात की एक एक करके मैं इसका चलेगा? जवाब ले लेता हूं। पहले भूपेंद्र कौशल जी जो बात कह रहे हैं कपिल जी, मैं चाहूंगा थोड़ा सा उसको बताएं। अच्छा, मैं कपिल जी से बताना चाहूँगा कि जो वॉकमैन की जो शॉर्टेज था वो जब ये कोरोना काल स्टार्ट हुआ तो भी शॉर्टेज था, और जब ये रीगेन हुआ तो भी शॉर्टेज है। अब कैसे शॉर्टेज है इसको मैं कैसे बोलूँगा कि जब ये केवल फियर फैक्टर था, जैसे ही फियर फैक्टर स्टार्ट हुआ कि कोरोना आ गया तो हमको तो लेबर मिलता ही नहीं था। द इंडस्ट्री हमको इतना सर्च करना पड़ता था, लोग भाग गए अपने घर, क्योंकि जितने भी दिल्ली एनसीआर में जो एम्प्लॉयर हैं उनको बेचारों को ट्रक में जैसे भी मर्जी, मतलब जितने भी भाई सारे मीन्स को इस्तेमाल करना पड़ा, लेबर मिलता ही नहीं था बिकॉज ऑफ फियर फैक्टर। सभी लोग अपना एम्प्लॉयमेंट छोड़ करके चले गए, और हम डबल पेमेंट देने के लिए भी तैयार है लेकिन वो अवेलेबल नहीं थे। और जब ये कोरोना काल जैसे ऐसे रिगेन हो रहा है तो हमने जितना भी मैक्सिमम प्रिकॉशन हो सकता है सारे प्रिकॉशंस इस्तेमाल किए, उनको मतलब ना सैनिटाइज़र सारा कुछ भी व्यवस्था की। उसके बाद धीमे धीमे जो शॉर्टेज है अब जाकर के पूरा हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ फियर फैक्टर बहुत बड़ा काम किया है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, हमारा जो देश है ये ऐसा देश है जिसमें वर्ल्ड लार्जेस्ट इलिटरेट है, एट द सेम टाइम वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेजुएटी भी है हमारे यहाँ। और कंट्री में ऐसी विरोधाभास नहीं है। ये विरोधाभास केवल इंडिया में ही है जहाँ वर्ल्ड लार्जेस्ट इलिटरेट है। यहाँ प्रॉब्लम एम्प्लॉयमेंट की नहीं है, यहाँ एम्प्लॉयबल वर्कमैन की है, एम्प्लॉयबल स्किल्ड स्टाफ की है, एम्प्लॉयबल इंजीनियर्स की है, एम्प्लॉयबल डॉक्टर्स की है। यानी कि बहुत बड़ा गैप है जो हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है एंड दूसरा जो है जो एम्प्लॉयर है उनकी नीड है। दोनों के बीच में बहुत डिमांड एंड सप्लाई के बीच में बहुत गैप है। हम चाहते हैं कि ये गैप्स को धीमे कम हो, तो इसी कारण से एम्प्लॉयर जो है ITIs को अडॉप्ट कर रहे हैं। नहीं, लेकिन इस बजट से जोड़ के बताइए ना, इस बजट से तो उस दिशा में बढ़ते हुए हम कैसे दिख रहे हैं, इस बजट में क्या हर्डल है? वेरी गुड, आई थिंक इस बजट में जो जिग वर्कर का हमने जहाँ का पोर्टल खोले हैं जिसमें हम जितने भी वर्कमैन हैं उनको पोर्टल से जोड़े जाएगा और उसमें हमारे सर पर डेटाबेस आ जाएगा ताकि हमें पता लग जाएगा कितने वर्कमैन हैं जो कि एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है और उनको हम वहाँ से सोर्स कर सकते हैं। तो ये जिग वर्कमैन की जो पोर्टल है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो इस बजट में इसको एनरोल किया गया। ठीक है, अब एक चीज और थोड़ा सा मैं प्रदीप गोयल जी में समझना चाह रहा था, क्योंकि जो बात कपीश जी ने कही है मैं चाहूंगा कि थोड़ा उसका जवाब देते चले। प्रदीप गोयल जी। जी हाँ कपीश जी, धन्यवाद जो आप लोगों ने हम लोगों पे विश्वास जाहिर किया। लेकिन हम उसी के कंटिन्यूएशन में कहेंगे कि जो हिंदुस्तान के अंदर लॉ रिफॉर्म चल रहे थे बहुत जमाने से, जिसमें कि बहुत सारी दिक्कतें आती थी, बहुत सारे पेचीदगियाँ थी। ये बहुत सारी पेचीदगियाँ विवाद से विश्वास स्कीम में खत्म हुई हैं। अब हम लोगों को 6-6 साल के 10-10 साल के रिकॉर्ड रखने पड़ते थे, जिसका 20-25 हज़ार रुपये का भी हिसाब है, 50 लाख रुपए का भी हिसाब है, उसको भी अपने सारे रिकॉर्ड रखने। उन सब में बहुत छूटें आई हैं। जैसे अब रिकॉर्ड 3 ही साल के रखने हैं 6 साल की जगह पे। 50 लाख से ऊपर की अगर कोई एनोमली है तो उसी केस के अंदर हमको 10 साल के रिकॉर्ड रखने हैं। यानी अगर किसी आदमी ने व्यापारी 20-25 लाख रुपए का करना है तो उसको किसी भी हालत में 10 साल का रिकॉर्ड नहीं रखना है। और फेसलेस अपील्स अभी हम लोगों की चल रही थी। अब फेसलेस इनकम टैक्स अथॉरिटी टर्मिनल में केसेस होंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होंगे। तो इन सब में हमें लगता है काफ़ी जो फेसेस में जाके हम लोगों की प्रॉब्लम्स आती थी, हैरेसमेंट होता था क्लाइंट्स का, उसमें काफ़ी रिलैक्सेशन आने की उम्मीद है। और कोरोना काल के बारे में जैसे कहते हैं लोग कि कोरोना काल कोई किसी ने दिया तो है नहीं, ये तो एक युद्ध जैसी स्थिति है कि जो कि पुराने समय में जिस समय में आया है हमारे। लेकिन प्रदीप जी मैं फिर घूम फिर के वहीं आऊंगा, मुझे बताइए आम आदमी को क्या मिला है? तो कोरोना के काल में हर एक सेक्टर प्रभावित हुआ, MSME से लेकर के आप कोई भी सेक्टर देख लेंगे, सबको इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ा है। और फिर आम आदमी चूंकि हर चीज से कनेक्टेड है तो वो उससे डेफिनेटली प्रभावित हो रहा है। अब वो ये सोच रहा है कि ये जो बजट 2 घंटे तक पढ़ा गया उसमें उसके लिए क्या था, तो ये थोड़ा बताइए कैसे क्या है, नौजवानों के लिए क्या है,
आप इंडस्ट्रीज के लिए अब क्या है, आम आदमी के बूस्ट अप लिए कैसे हो रही हमारी इकोनॉमी, ही, हम कैसे हमें लगता हमारा जो है अर्थव्यवस्था किसानों का को जो जो पहिया है वो सही इंडस्ट्रीज तरीके के से लिए बताइए घूमेगा, ना, इंडस्ट्रीज थोड़ा ये के लिए। बता दीजिए। मैं तो केवल समझना चाह रहा हूं क्योंकि पॉलिटिकल चर्चा तो होती रहेगी, हुआ क्या है एग्जैक्टली थोड़ा अब समझाइए। अब ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में 1.18 लाख करोड़ रुपए का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, रेलवेज में काफी मोटा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और बाकी इंडस्ट्रीज में सभी चीजों में आम आदमी के अंदर अगर कहें कि 8 करोड़ लोग थे, अब उज्ज्वला योजना में 9 करोड़ लोगों को मिलेगा। तो अब ये तो मैं राजनीतिक रूप से नहीं बता पाऊंगा कि कौन आम आदमी है, कौन विशेष आदमी है, लेकिन जो भी मिडिल क्लास, लोअर क्लास या अपर क्लास जो कि पूरी कंट्री को एज ए टीम चलाते हैं, उन सभी के लिए बेनिफिट होना आवश्यक है। क्योंकि अगर इंडस्ट्री को बेनिफिट आएगा तो अगर आप कहें बड़ा आदमी है या छोटा आदमी, तो मैं नहीं उसके अंदर जा सकता हूं, मेरा उस विवाद से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा होगा तो हमारी समझ से वही फायदा आगे चल के नीचे कॉमन मैन को भी उसका वेटेज मिलेगा। ठीक है, चलिए एक एक कमेंट और लेते हैं। अशोक जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? मुझे लगता है कि जो मजदूर सेक्टर के लिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो समाज के विभिन्न वर्गों के लिए जो जरूरत के हिसाब से यह बजट जो बनाया गया है, यह सामाजिक अवसंरचना के लिए एक अभूतपूर्व कदम है। चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो और चाहे वो मजदूर का क्षेत्र हो, चाहे वो किसान मजदूर हो, चाहे वो कॉमन मजदूर हो, चाहे वो चाय बागान में काम करने वाला मजदूर हो, उन सब के लिए अलग अलग डिफरेंशिएशन किया गया है। लेकिन ये आत्मनिर्भरता को लक्ष्य रखते हुए ये बजट बनाया गया है कि आत्मनिर्भर भारत बने। कौशल विकास के तहत उन लोगों को लेके देखिए, किसी भी देश की एमएसएमई उसकी बैकबोन होती है, और एमएसएमई को ही सबसे ज्यादा बढ़ावा हमने दिया है। तो एमएसएमई सेक्टर के बढ़ने से सारे संपूर्ण सबको लाभ मिलेगा। और इनकम टैक्स पे का जो दायरा हमने बढ़ाने का, वॉल्यूम बढ़ाने का काम किया है, उससे सरकार को एक्स्ट्रा गेन भी हो रहा है। चाहे वो जीएसटी से सबसे रिकॉर्ड गेन हमको मिला है। और जो बार बार डीजल पेट्रोल की बात हो, जो कितना परसेंट डीजल किसान इस्तेमाल करता है, वह सारा 4% स्लेस से हम उसको रिकवर करने की बात भी कर रहे हैं कि आगे उसको रिकवर किया जाएगा। अभी तो रिफॉर्मेशन में है, अभी ये फाइनलाइज नहीं है, अभी ये रिफॉर्मेशन के स्टेज पर है। इसमें आगे भी चर्चा होकर के रिफॉर्मेशन होगा, ऐसा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के यह बजट पूरे समाज के लिए एक बहुत पूर्ण उपयोगी और एक ऐसा बजट होगा जिसमें स्वास्थ्य, इस हिंदुस्तान में देखा कि इस कोविड के समय में हेल्थ सेक्टर ने बहुत काम किया है। और भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ से पूरे, अगर भारत आगे बढ़ता है तो पूरे विश्व की निगाह भारत पर रहती है। उससे भारत के लाभ से पूरे विश्व को लगता है कि अगर भारत मजबूत हो रहा है तो बिल्कुल। लेकिन अशोक जी, फायदा मिलना चाहिए ना, सिर्फ बजट तक ही ना रहे ना, वो बजट पहुंच जाए लोगों की जेब तक। सवाल इस बात का भी होता है। ठीक है कपिल जी, देखिए, बड़ा मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैंने जो भी प्रश्न उठाए उस पर पॉइंटेड जवाब हमें नहीं मिल सका। खैर कोई बात नहीं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो सीए साहब ये बात कह रहे थे कि उन लोगों को रिकॉर्ड रखने में आसानी होगी, ये बिल्कुल सही दुरुस्त फरमा रहे थे। क्योंकि मैं भी एक एडवोकेट हूँ और इन्हीं लोगों के बीच में उठता बैठता हूँ, भारतीय स्टेट बैंक का पैनल भी हूँ। तो हम उद्योगपतियों से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि टर्म लोन से लेकर के सीसी लिमिट और किस तरीके से मुद्रा का खेल चला है वो सब हमें पता है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि देखिए, मैंने एमएसएमई की बात क्यों कही थी। एमएसएमई के ही बैठे हुए हैं हमारे जो मित्र बैठे। मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूं कि जिस समय कोरोना काल आया था, दुर्भाग्य से ये पूरे विश्व के लिए आया था और हाँ, हिंदुस्तान के लिए भी आया था। हमारी सबसे ज्यादा तो एमएसएमई ही है। और एमएसएमई में क्या किया गया कि 3 लाख करोड़ रुपए कहा गया कि हम ऋण देंगे। एमएसएमई जो बंद थी उनको डायरेक्ट आपने कोई फायदा नहीं पहुंचाया। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे तमाम मित्रों के उद्योग बंद हो गए। मैं इस चीज को अपनी आंखों से देख रहा हूं। कारण क्या था कि वो कहते थे कि ईएमआई में कुछ हमें कमी कर दो, हमारा जितने दिनों तक बंद रही है फैक्ट्रियां, उसके बिजली का बिल माफ कर दो, क्योंकि हमने वो जलाया ही नहीं जिसको आप फिक्स चार्ज के रूप में लेना चाहते हैं। तो डायरेक्ट आपने कुछ किया नहीं। आप कहते हैं कि खाना खाने के लिए लोन ले लो। अरे वो खाना खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, खाना खाने के लिए लोन दिला रहे हैं। 30% एसएमई बीच में बंद हो चुकी है। और आगे अभी इस बजट में मैंने कहा कॉर्पोरेट टैक्स आपने जो फिर कम कर दिया दोबारा, उससे बड़े उद्योगपतियों को लाभ मिलेगा। उससे एमएसएमई सेक्टर को कोई डायरेक्ट लाभ मिलता हुआ नहीं जा रहा है। ऊंट के मुंह में जीरा है 15,000 करोड़ रुपए पूरे देश के एमएसएमईओ के लिए। उत्तर प्रदेश के लिए पर्याप्त नहीं है तो मैं पूरे देश की बात क्या कहूं।
ये हमारे मित्र कह रहे थे कि 1000 करोड़ का बजट चाय बागान के मजदूरों को दिया है। भाई साहब वो तो राजनीतिक बजट है, आपको वोट लेना है, सिर्फ एक जगह दे रहे हैं। आप देश का बजट लेके आए नहीं। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर रोड बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए देने की बात कर रहे हैं तो बंगाल और असम में कर रहे हैं, तमिलनाडु में कर रहे हैं। ये तो आप वहां पर क्योंकि इलेक्शन है इसलिए लेकर के आए। आपका कोई लेना देना नहीं है। आपने मनरेगा नहीं, लेकिन कपीश जी भाई ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ तो हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होता ही रहता है। कपीश जी यहाँ तो हर प्रदेश में कभी ना कभी चुनाव चलता ही रहता है, तो ऐसे तो फिर हर बजट को आप यही कहते हैं कि भाई चुनावी बजट है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने जो बजट दिखाया उसमें से 2 लाख करोड़ रुपए तो चुनावी बजट में। चलिए, मोटी बात आपने कही। एमएसएमई को लेकर के थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, एक एक करके मैं थोड़ा कमेंट लेता हूं। प्रदीप गोयल जी, एमएसएमई के लिए क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने कोरोना काल के बीच में भी देखा था, एक बड़ा आर्थिक पैकेज लेकर के आई थी, और उसके बाद अब हम लोग देख रहे हैं कि इस बजट के अंदर भी यही स्थितियां हैं। क्या हुआ है एमएसएमई को लेकर के, क्योंकि इसको तो बैकबोन बता रहे थे अशोक जी, तो बैकबोन के लिए क्या किया है, एमएसएमई को क्या मिला है? एसएमई के लिए उस समय तो 3 लाख करोड़ का जो पैकेज आया था वो अभी चल रहा होगा और उसका रूप चल रहा है। अब इस समय 15,700 करोड़ रुपए का ये पैकेज जो स्पेशल दिया गया है, 7 टेक्सटाइल पार्क्स वगैरह बनाए गए हैं। अब ये अगर कहा जाए कि टैक्स में थोड़ी सी रिबेट्स होनी चाहिए थी, 5 लाख के ऊपर अगर कोई आदमी टैक्स दे रहा है तो उसे 12,500 13,000 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं सरकार ने अपनी टैक्स की जो उससे तो कंप्रोमाइज नहीं किया है, जिससे कि बहुत ही मिडिल क्लास या लोअर क्लास को बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता। लेकिन अभी हमें लगता है कि इस समय गवर्नमेंट की शायद टैक्सेस कोरोना काल में वैसे भी बहुत कम आ रहे हैं, तो शायद वो रिलैक्सेशन ना दे पाए हों। ओवरऑल बजट तो ठीक है, लेकिन यह है कि थोड़े रिलैक्सेशंस और भी मिल जाते तो फायदा था। एसएमई में हुआ है, लेकिन अभी और भी गुंजाइश है जिसको किया जाना चाहिए। भूपेंद्र कौशल जी, क्या हुआ है एमएसएमई के लिए, थोड़ा सा इसको भी बताइए। एक सवाल मेरा कपीश जी से, आयुष जी है। ठीक है अशोक जी, थोड़ा भूपेंद्र कौशल जी से समझ लेते हैं। थोड़ा सा बजट की चर्चा है तो हम लोग थोड़ा समझते ना है क्या। ठीक है, आप सवाल जवाब आप लोग करते रहिएगा, मैं भूपेंद्र जी से मैं पूछ रहा हूँ। भूपेंद्र जी एमएसएमई के लिए क्या? एमएसएमई में काफी अच्छा पैकेज पास में भी दिया, अभी भी दिया हुआ है, और बेसिकली उसका नहीं, कपिल जी ने ये कहा ना, क्योंकि 15,000 करोड़ या 16,000 समथिंग करोड़ अगर कुछ है भी तो प्रदेश के लिए काफी नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए। लेकिन इससे पहले भी तो पैकेज आया था ना, क्या उसको इंक्लूड करते हुए देखें तो ये काफी है, और एमएसएमई के लिए हो रहा है का? भूपेंद्र कौशल जी, यस, प्रदेश का बजट अलग होता है। एमएसएमई को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो लेबर रिफॉर्म्स के विषय में प्रीवियसली काफ़ी चेंजेस किए, उससे काफ़ी बेनिफिट हुआ है, और इस बजट में भी एमएसएमई को पैकेज के थ्रू उसको काफ़ी ईज किया हुआ है। तो डेफिनेटली हम ये नहीं कह सकते कि एमएसएमई को नेगलेक्ट किया है और हायर अप्स को या जो अच्छे ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रीज है उनको केयर नहीं की, उनको ज़्यादा केयर किया है, ऐसा नहीं कह सकते। टैक्स रिफॉर्म्स के द्वारा, लेबर रिफॉर्म्स के द्वारा, लेजिस्लेशन रिफॉर्म्स के द्वारा एमएसएमई को डेफिनेटली स्लोली एंड स्टडी इसको ईज किया जा रहा है, ताकि ये एमएसएमई जो है वो ग्रो कर सके। मनोज जी, मिसिंग क्या नजर आ रहा है? क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि हम लोगों को इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इसकी उम्मीद थी वो मिली नहीं, या वो देखने को नहीं मिली। क्या मिस हो गया है, क्या छूट गया है, क्या ऐसी उम्मीद थी जो आपको लग रहा है कि सरकार फोकस अगर उस पर करती तो शायद साध लेती वो सभी को? दरअसल आत्मनिर्भर भारत की बात करना बहुत बड़ा हिंदी का शब्द है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर सरकार से अलग होता है। जब आप एमएसएमई के जरिए लोगों को रोजगार और परिवार आत्मनिर्भर होगा, और गांव और तहसील और जिला आत्मनिर्भर होगा, भारत अपने आप आत्मनिर्भर हो जाएगा। मेरा ये कहना था कि जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान लोग पलायन करके गांव और घर और अपने जगह आ चुके हैं, दोबारा जाने की स्थितियों में भी परसेंटेज कम है, और उनको चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों के संयुक्त प्रयास से कोशिश की जा रही है कि लोग यहीं रहें और यहीं रोजगार करें और खुद सेल्फ में स्वयं से अपना रोजगार करें। जब उसके लिए प्रयास को लेकर के, जैसे मैंने कहा है कि 3 लाख करोड़ का बजट दिया गया था, लेकिन अब जो बजट आज केंद्र सरकार ने प्रेषित किया हुआ है, आयुष मैं फिर कहना चाहूंगा, अच्छा लगता है कि आपने, चाहे सारी इंडस्ट्री, हम स्वास्थ्य की बात कर ले, जिन मुद्दों की बात कर ले, बड़ा अमाउंट दिया है, लेकिन जिसके जरिए आने वाले समय में महंगाई या बाकी चीजें बढ़ेंगी, वो उसका असर आम आदमी पर पड़ेगा। हम इसके बाद 4 महीने बाद चर्चा कर लेंगे, 6 महीने बाद कर लेंगे,
लेकिन जब महंगाई बढ़ेगी तो जाना हमारे आपके जेब से है। इसका भी भुगतान सरकार ने देखिए क्या किया है। सरकार पीछे जो बजट आउट ऑफ द वे जाके कोरोना काल में जनता पर खर्च किया है, दिया है, मुझे लगता है जीडीपी और उसकी वसूली का एक सीधा रास्ता है। तो बेहतर ये होता कि आम आदमी को लेकर के, आम लोगों को रोजगार को लेकर के थोड़ा और बेहतर करते तो अच्छा होता। टैक्स पेयर की बहुत चिंता की बात नहीं थी, टैक्स का स्लैब आपका ठीक था, उसको मत गिराइए, लेकिन चीजें नहीं बढ़ती इसका ध्यान देना चाहिए था। तेल के दाम बढ़ने से वो आप रोक नहीं पाओगे। प्रदीप गोयल जी, महंगाई बढ़ेगी निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में, क्योंकि अभी फिलहाल इस बजट के अंदर जो चीजें हुई हैं, क्या ऐसा मान सकते हैं? क्योंकि मनोज जी बार बार कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल इसका खामियाजा, और खासतौर से जो मिडिल क्लास है उसके ऊपर तो आने वाला है। ये हो सकता है कि अभी ना दिख रहा हो, क्योंकि सरकार ने जो एक्स्ट्रा खर्च किया कोविड के दौरान वो वसूल तो वो करेगी। प्रदीप जी। नहीं, देखिए, टैक्स का कोई भी रेट नहीं बढ़ाया है उन्होंने, किसी भी तरह का कोई रेट इन्होंने बढ़ाया नहीं है, उल्टे छूट जो देनी थी वो नहीं दी है। तो टैक्सेस के वजह से तो कोई आने की चांसेस नहीं लग रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट ने टैक्सेस को रियलाइज करने में बड़ा दिमाग लगाया है, और इस साल इसी महीने देखिए 1.20 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी उन्होंने रिसीव किया है। उससे कुछ व्यापारियों और कुछ सिस्टम में जरूर दिक्कतें आ रही हैं कि उन्होंने कुछ वसूली में बहुत अक्लमंदी दिखाई है, लेकिन और टीडीएस के रेट्स भी नहीं बढ़ाए हैं जिससे कि उनका उसमें कुछ रियलाइजेशन हो जाता। और जो रेंटल माइग्रेशन वर्कर्स के लिए रेंटल था, उसके अंदर भी उन्होंने इसकी स्कीम को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। और ईएसआई और पीएफ के ऊपर भी गवर्नमेंट ने एक सिस्टम लाया कि व्यापारियों को अगर नहीं जमा करेंगे तो उनके ऊपर उनके एक्सपेंसेस को डिसअलाउ कर दिया प्रदीप जी, अब इसी के साथ चर्चा मुझे यहीं समाप्त करने की समय नहीं मेरे पास। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि लोगों की अपनी अपनी राय है और एक्सपर्ट्स इसको अपनी अपनी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जो बात इस बजट को पेश करने के बाद वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई है, उसका असल फायदा देशवासियों को कब मिलता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।